Consider the statement A, D regarding equation 1 and 3. First is FeCN6 minus 3 react with COCN5 minus 3 give FeCN6 minus 4 COCN5 minus 2 COBiPy3 plus 2 react with COBiPy3 plus 3 use COBiPy3 minus 3 and COBiPy3 plus 2 star CONS3F plus 2 react with CrH2O 6 plus 2 to view CONS35H2O plus 2 CrH2O5 plus H2OF plus 2. A. Marcus equation is applicable to 1 and 2. B. Marcus equation is applicable to 2 only. C. Equation 1 and 2 involve inner spheres electron transfer. D. Equation 1 and 2 involve inner sphere electron transfer. The correct statement are A and B, B option B and C option B and D option C and D. So इसका explanation जो है ये है. So answer is D. ठीक है. So यहाँ पे explanation क्या है? FeCN6 minus 3 react with COCN5 minus 3 give NC5 FeCnCO CN5 minus 6 electron transfer give FeCN6 minus 4 and byproduct as COCN5OH2 minus 2 inner sphere mechanism. Then next is COBiPy3 plus 2 react with COBiPy3 plus 3 COBiPy3 plus 3 COBiPy3 plus 2. तो ये आउटर स्पीयर मैकेनिज्म्स है. ठीक है. नेक्स्ट इज CONS3F plus 2 react with CrH2O6 plus 2 dehydration NH35CO3FCr2OH25 plus 4 electron transfer we get NH35CO2F Cr3OH25 plus 4. What is added to give CONS35OH2 plus 2 inner sphere mechanism CrOH25F plus 2. Marcus equation is applicable only for cross outer sphere reaction. तो मार्कस इक्वेशन से एप्लीकेबल है क्रॉस आउटर स्पीयर रिएक्शंस के लिए. बी इज a transfer exchange reaction. Its rate of electron transfer can be calculated experimentally. No need to apply Marcus equation. तो Marcus equation सिर्फ applicable है क्रॉस आउटर स्पीयर रिएक्शन के लिए. बी में क्या है? सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शन जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र का रेट जो कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली, लेकिन इसमें मार्कस इक्वेशन एप्लीकेबल नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि ये क्रॉस आउटर स्पीयर मैकेनिज्म्स के लिए ही एप्लीकेबल है मार्कस इक्वेशन. रेफरेंस बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय F. Albert Cotton, G. Wilkinsons and Paul L. Gales, third edition in the question only. This statement is correct. So D statement क्या है? D statement है C and D. और C and D क्या है? इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इन्वॉल्व इनर स्पीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र. जो 1 और 2 है वो इनर स्पीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र है. इक्वेशन 1 एंड 3 इन्वॉल्व इनर स्पीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र. 1 और 3 में भी इनर स्पीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र है. नेक्स्ट इज consider the following statement. A. Cr plus 2 is easier to oxidize V plus 2 in the gas phase. B. Cr plus 2 aqueous is more powerful reducing agent than Vi plus 2 aqueous. C. The rate of water exchange for Cr plus 2 aqueous is much faster than for V plus 2 aqueous. The correct statement are A and B, B, A and C, B and C, D, A, B and C.
सो 130 का क्या है, सी है। सो यहाँ पे एक्सपेंशन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है क्रोमियम का वो 3d4s है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Cr+2 का 3d4 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन V+2 का 3d3 है। Because of high nuclear charge of chromium is greater than that of vanadium, chromium has higher the initial energy than vanadium, hence chromium plus 2 is not easier to oxidize than V plus 2 in gas phase. Thus option A is incorrect. So इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है क्रोमियम का वो 3d4 4s2 है। जब क्रोमियम जो अपना 2 इलेक्ट्रॉन यूज़ करता है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d4 हो जाता है, और वेनेडियम जो है वो 3d3 4s2 होता है, लेकिन जो वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तब 3d3 हो जाता है। सो क्रोमियम का जो हायर न्यूक्लियर चार्ज की वजह से, ठीक है, क्रोमियम का जो हायर न्यूक्लियर चार्ज है वो ज़्यादा है कंपेयर टू वेनेडियम से, और क्रोमियम का न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है क्रोमियम का ज़्यादा है कंपेयर टू वेनेडियम से, ठीक है। हेंस क्रोमियम प्लस 2 इज़ मोर ईजियर टू ऑक्सीडाइज देन V+2 इन गैस फेज। इससे क्रोमियम प्लस 2 को ज़्यादा आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता कंपेयर टू वेनेडियम+2 से। तो ये ऑप्शन जो है ए, ये इनकरेक्ट है। देन Cr+2 aqueous gives Cr2 6+2 Cr2 6+3 electrons. We get Eg T2g less stable as less CFSC, Eg T2g more stable as more CFSC, V plus 2 aqueous VH2 6 plus 2 VH2 6 plus 3 electron. Thus V plus 2 aqueous does not easily oxidize. Thus chromium plus 2 is more powerful reducing agent than vanadium plus 2. So ये जो है वेनेडियम का CFSC वो ज़्यादा स्टेबल नहीं है, ठीक है। अगर ज़्यादा मतलब स्टेबल नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर 3 इलेक्ट्रॉन रहता है तो ज़्यादा स्टेबल है, राइट। सो ओके, अभी CFSC इसमें स्टेबल क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन जो है Eg में गया, लेकिन जो दूसरा वाला है जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन है उसमें T2 में 3 ऑर्बिटल है, तो 3 इलेक्ट्रॉन है तो ज़्यादा स्टेबल हो गए। वेनेडियम प्लस 2 VH2O6 प्लस 2 VH2O6 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, वेनेडियम जो है वो भी इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होता है, तो Cr+2 ज़्यादा पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है कंपेयर टू वेनेडियम प्लस 2 से। मतलब क्रोमियम प्लस 2 जो है दूसरे स्पीशीज से इलेक्ट्रॉन दूसरे स्पीशीज़ को इलेक्ट्रॉन गेन करवा सकता है। क्रोमियम प्लस 2 इज़ मोर लेबाइल देन V+2 aqueous. Also Cr+2 belong to class 1 metal and V+2 belong to class 3 metal. क्रोमियम प्लस 2 ज़्यादा लेबाइल है कंपेयर टू वेनेडियम प्लस 2 से, तो क्रोमियम प्लस 2 जो है क्लास 1 मेटल में बिलोंग है और वेनेडियम प्लस 2 क्लास 3 मेटल में बिलोंग है। तो रेट ऑफ वाटर एक्सचेंज ऑफ क्रोमियम प्लस 2 इज़ फास्टर देन वेनेडियम प्लस 2। जो क्रोमियम प्लस 2 में जो वाटर एक्सचेंज रेट है वो ज़्यादा फास्टर है कंपेयर टू वेनेडियम प्लस 2 से। नेक्स्ट इज lowest energy state of 1s1 2s1 electronic configuration according to Hund's rule is। जो 1s1 2s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का लोवेस्ट एनर्जी स्टेट है वो है 3s0 1s0 3s1 1s1। सो 129 का
आंसर है 1s1 एक इलेक्ट्रॉन, 2s1 1 इलेक्ट्रॉन। सो इसमें 1/2 प्लस 1/2 है तो 1 इलेक्ट्रॉन मिलता है। 2s प्लस 1 इज equal to 2 multiplied by 1 plus 1 is 3. So J L plus S, L minus S is L plus 0, L minus 0 is equal to 1. So L is equal to 0, मतलब S टर्म है तो 3s1, तो टर्म्स 3s1 हो जाएगा। सो आंसर इज C3s1, ठीक है। नेक्स्ट इज फॉर इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा of K2CrO4A and K2MoO4B, the correct combination is, so potassium chromate or potassium molybdenum का इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा का करेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहेगा? ए ट्रांजिशन इज dd and lambda max has A smaller than B. Transition of ligand metal charge transfer and lambda max for A smaller than B. C's transition is ligand metal charge transfer and lambda max for A greater than B. D's transition metal ligand charge transfer and lambda max for A greater than B, ठीक है। सो इसमें क्या है? पोटेशियम क्रोमेट और डाई पोटेशियम मोलिब्डेनम, इनका इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा करेक्ट कॉम्बिनेशंस क्या है? तो 128 का हाँ, सो इसका एक्सप्लेनेशन ये है, करेक्ट आंसर है बी। सो इसमें एक्सप्लेनेशन क्या है? निकल 3d8 हाँ सॉरी 128 का सी। तो यहाँ पे क्या है? CrO4-2 जहाँ पे Cr + 6 3d04s0 होता है, O-2 2s2 2p6 होता है। मोलिब्डेनम टेट्रा ऑक्साइड -2 जो है मोलिब्डेनम +6 में 4d050 हो जाता है। सो दोनों केस में दोनों Cr+6 और मोलिब्डेनम +6 आयन में कोई भी डी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसलिए कोई डी ट्रांजिशन इन्वॉल्व नहीं है। सिंस इन बोथ द आयन ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ वेरी हाई, क्योंकि इनका ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत हाई है तो ऑब्वियसली डी ऑर्बिटल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। देयर इज़ अ लिगैंड मेटल चार्ज इन बोथ द केसेस, दोनों भी केसेस में लिगैंड मेटल चार्ज ट्रांसफ़र है। द एनर्जी गैप बिटवीन 2p6O-2 and 3d0Cr+6 is less than that of between 2p6O-2 and 4d0MO+6। जो एनर्जी गैप है 2p6O-2 के केस में और 3d0Cr Chromium+6 के केस में कम है कंपेयर टू गैप जो 2p6O-2 और 4d0 मोलिब्डेनम +6 के बीच में है। तो लिगैंड मेटल चार्ज ट्रांसफर एनर्जी जो रहेगा क्रोमियम टेट्रा ऑक्साइड -2 का कम रहेगा कंपेयर टू हाई लैम्डा मैक्स कंपेयर टू मोलिब्डेनम टेट्रा ऑक्साइड -2 जो लो लैम्डा मैक्स रहेगा। सो क्रोमियम का जो क्रोमियम टेट्रा ऑक्साइड -2 का लिगैंड मेटल चार्ज ट्रांसफ़र कम रहेगा, लेकिन उसका लैम्डा मैक्स ज़्यादा रहेगा कंपेयर टू मोलिब्डेनम से, ठीक है, क्योंकि मोलिब्डेनम टेट्रा ऑक्साइड का लैम्डा मैक्स लो है, ठीक है। तो लिगैंड मेटल चार्ज ट्रांसफर मोलिब्डेनम का ज़्यादा रहेगा और CrO4-2 का कम रहेगा, क्योंकि CrO4-2 का लैम्डा मैक्स ज़्यादा है और MoO4-2 का लैम्डा मैक्स कम है। So answer is 128C. सो सी है 128 का सी। सी का क्या? ट्रांजिशन इज लिगैंड मेटल चार्ज
stands when lambda max for A is greater than B.